Hello everyone, good morning. Okay, so guys, I have asked you to do one assignment. Have you completed that? String assignment? Okay, yes or no? So I asked to complete a string assignment, okay, that you just need to define some environment, you just need to match with a particular string and then you need to print the answer, right? So have you tried that? किसी ने ट्राई किया स्ट्रिंग असाइनमेंट जैसे कि यहाँ पे वेरीफाई ब्राउजर का था राइट बट ब्राउजर असाइनमेंट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सो व्हाट अबाउट दिस platform assignment? Fine. See, previously all the topics whatever we have covered it is related to Java only, right? All the basic part is now over. Today we are going to simple use what I can say. I will be starting with encapsulation principle. So everybody tell me, you have to practice, okay? अगर practice नहीं किया है तो आप करो. You have to practice because इसके बाद हमारे topic जो start होंगे, hardly 1 week is remaining for Java. I will be starting then your Selenium WebDriver sessions. Okay, so please understand, observe. I am taking some other batches also. If you want to attend that batches also, you can attend the batches. But please complete your work. Okay. Chalo, let's start with today very beautiful, very interesting topic, encapsulation. I will be saying that, okay, all the object-oriented principle we are going to start today. So what is the first principle, guys? Already we have seen, there are 4 important principles we have. Encapsulation, polymorphism, inheritance, and data abstraction. Okay. What is meant by encapsulation? So, देखो एक simple thing. Encapsulation in Java, it is a mechanism of wrapping. Wrapping what? Data, that is nothing but variable, and code acting on that data, nothing but method, together as a single unit. So it is a wrapping of data function together into a single unit, that is called encapsulation. Yes. So in encapsulation, variable of a class, okay, will be hidden from other class. So main purpose kya hai encapsulation ka? I will say data hiding. What the encapsulation will do? Encapsulation will simple perform data hiding. तो कैसे? अगर कोई क्लास से आपको इंफॉर्मेशन को डेटा को हाइड करना है तो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू हाइड इट? सो सिंपल है गाइस, द वेरिएबल ऑफ अ क्लास विल बी हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस. ओके, यूजिंग व्हाट आई कैन से, यू जस्ट नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज अ प्राइवेट. अगर आपने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज किया तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू hide your data, from the outsider. Yes or no? So private is a data or modifier, we are going to use to hide the data. So let me tell you how exactly we can do this. So main purpose क्या है encapsulation में? Encapsulation says that okay, whatever the data you have for a particular class, you can just hide it. Okay, this example, this data when you become or when you make it as private data, so private information, private data, it can be accessible within a class only. अगर एक class का data private है तो I can access this data within a class only. We have already covered ना access modifier. Remember, Java में कितने access modifier available है? 4 access modifier. Okay. First, it is all about I can say private. Let me write public. Yes. Third, we can say default, right? And one more, that is called protected. So in the inheritance, I will be covering this protected part. But private मतलब क्या? अगर कोई वेरिएबल को आपने प्राइवेट सेट किया, it will be accessible within a class. Outside a class, okay, you can't access it. तो सेम आपको करना है. अगर कोई डेटा को हाइड करना है फ्रॉम आउटसाइडर, so you just need to make a data as a private, so no other class can access, that information. So let me show you this part first. Everybody try to understand the concept. So data hiding, that is the first principle we are learning, encapsulation. Let me show you. For that, I will be creating a separate package now. So just observe. I will be first creating a separate package. So just go to the package, just write oop.what. I can say this is encapsulation. Okay. Object-oriented programming principle, and I will say encapsulation. Okay, package is ready. Let's create a class. So this is my class and let me give a name again, encapsulation.
Yeah. Demo. Done. Let me take a main function. So now just observe. I'm creating one class here itself. Okay, everybody just observe. Suppose this is my class and my class name is what? Suppose this is my test class. Fine. Class name is test class. Okay. So in this test class, I will be writing some data. Example test. This is a particular test for a student or maybe for employee, anything, right? So I'm just going to hide some marks or maybe some IDs. So consider I have some ID. Okay. So let me just write one ID. ID is 101. And suppose I have one more variable string, name of that student. Suppose name is again Sarang. Okay. Let me write Sarang. Okay. Done. So I have prepared some information. Okay. ID is 101. Name is Sarang. Now what I have to do? I have to simple, let's say, suppose you have declared one method also. Consider public void and show method. चलो पहले हम concept understand करेंगे. So whenever you just write here, okay, fine. Let's say student ID is, okay, let me write ID is, and suppose I'm going to print here. So let me just mark this entire message inside a double quote. Fine. And here I will be writing, okay, student ID is what? ID. Simple. And फिर मुझे लिखना है, okay, fine, student name. So let me write student name is, and I will be writing here. So just let me write here a name of the student. Done. अभी के लिए जो डेटा है जो आपने डिफाइन किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे कोई एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं किया है. तो what access modifier is available here now? If you don't specify कि ये private है, public है, तो ये by default क्या होगा? Default variable guys. Remember, अभी के लिए कोई भी टाइप मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो ये डिफॉल्ट है. एंड डिफॉल्ट का रूल क्या है? विदिन अ क्लास, विदिन अ पैकेज, एनीवेयर यू कैन एक्सेस. क्लियर? तो अब एग्जांपल ये क्लास है टेस्ट क्लास एंड आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास इनसाइड अ एनकैप्सुलेशन डेमो. तो क्या मैं टेस्ट क्लास के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हूँ? यस, ऑब्वियसली यू कैन एक्सेस इट. सी दिस, जस्ट क्रिएट अ टेस्ट t1 is equal to new and yes you can create a object, है ना? अब using t1 we are able to access id. yes, in fact आप एक्सेस भी कर सकते हो प्लस आप इसको चेंज भी कर सकते हो. लेट मी शो यू. सपोज प्रीवियसली डायरेक्टली इफ आई कॉल शो मेथड, then whatever the original data you guys have set, जैसे कि मैंने लिखा है 101 Sarang, okay, show से क्या होगा? Immediately we will get the same data. Just observe. If I run this code, so I'm calling this show method from the test class. And now you can see test class में जो भी data आपने लिखा होगा, you are able to observe here. Yes, because it is a default within a class, within a package, you can access it. Okay. तो अब example, after this, suppose I'm writing t1.id को कॉल करो एंड id में कुछ डिफरेंट id सेट करो, तो क्या हम कर सकते हैं? यस, वी कैन चेंज द डेटा. एंड प्लस अगर आपको इसको प्रिंट करना है, अगेन यू कैन प्रिंट इट. सो लेट मी जस्ट राइट t1 डॉट वन मोर टाइम id. दैट्स इट. अब देखो, whenever I'm printing this, I'm able to see the updated value also. Can you see the id is 201? है ना? हमने id को सेट किया, id को प्रिंट किया. सो बेसिकली कोई क्लास में अगर कोई इंफॉर्मेशन है एंड इफ यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ऑब्वियसली यू आर एबल टू यूज एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्लास. तो जैसे ये क्लास टेस्ट क्लास अलग क्लास है जिसमें मैंने कुछ डेटा सेट किया, आई कैन एक्सेस इट एनीवेयर. बट नाउ वी नीड टू अचीव हियर एनकैप्सुलेशन. आई वांट टू हाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस टेस्ट क्लास फ्रॉम अदर क्लासेस. जैसे कि अभी एनकैप्सुलेशन डेमो ये दूसरा क्लास है, बट यहाँ पे फिर भी आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, राइट? बिकॉज आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस डेटा में डिफाइन किया नहीं है. नाउ इट इज अवेलेबल फॉर दिस क्लास, फॉर दिस एंटायर पैकेज. एग्जाम्पल, एंटायर पैकेज में मैंने कोई दूसरा क्लास भी क्रिएट किया तो भी मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो रिमेंबर द रूल, whenever anything default we are able to access within a class, within a package. तो fine, अगर example let's try. Now this time let me check कि directly क्या हम test को call कर पाएंगे. Suppose this is what I will say, test demo class. Let me just write here test demo class. Okay, and let me take main function. Can I create directly here test object? Test t1 is equal to new and test. Yes, just observe.
अब यहाँ पे ये जो आपका डिफॉल्ट क्लास है, राइट, सी वी आर एबल टू एक्सेस हियर आल्सो, है ना, मतलब डिफॉल्ट क्लास है। सी एनकैप्सुलेशन डेमो इट इज एक्चुअल क्लास, बट यहाँ पे जो क्लास मैंने दूसरा क्लास प्रिपेयर किया है दैट इज अ डिफॉल्ट क्लास। तो डिफॉल्ट है तो रूल सेम, उस क्लास में प्लस उस क्लास के बाहर उसी कंप्लीट पैकेज में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो टेस्ट डेमो में अब मैंने क्या किया, फिर से कॉल किया, तो कैन आई अब कॉल इट, सी t1.id, yes, this time let me set t01, okay, and suppose मैंने कॉल किया t1 dot directly show method, तो obviously you will get the result, see now हमने अपडेट किया है ना डेटा, तो दिस टाइम इफ यू एग्जीक्यूट इट, सी यू आर एबल टू सी द अपडेटेड डेटा। दिस टाइम id got changed by some other class, है ना। तो जनरली क्या होता है, अगर आपने पब्लिक डिफॉल्ट ये अप्लाई किया तो एनीबडी कैन एक्सेस योर डेटा, बट यूजुअली ऑलवेज रिमेंबर योर डेटा शुड बी सिक्योर, है ना। जो भी डेटा आप एप्लीकेशन में पास करते हो, सपोज यू आर डूइंग रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन में आपने फोन नंबर ऐड किया है, यू हैव एडेड सम आई कैन से यूजर नेम पासवर्ड वॉट एवर यू हैव एडेड, एवरी डेटा शुड बी सिक्योर गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो डेटा सिक्योरिटी मेंटेन कैसे करो, अगर डेटा को सिक्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट केस यू नो वी हैव अ एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। तो पहला पॉइंट मुझे बताओ कि सब लोग एक क्लियर हो कि कैसे हम कोई भी क्लास का डेटा कोई दूसरे क्लास में कॉल कर सकते हैं। यस, इट इज क्लियर टू एवरीबडी। यस मैम। तो पहले मैंने ये शो किया कि एक्सेस होता है, राइट, एंड यू आर एबल टू कॉल इट एवरीवेयर। इनफैक्ट अगर आपने पब्लिक डेटा बोला तो आप कहीं पे भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी, जैसे एरे डेमो पैकेज, कंट्रोल फ्लो पैकेज, एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट आई कैन एक्सेस दैट, ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। बट अब मुझे करना क्या है, आई वॉन्ट टू हाइड दिस डेटा सो दैट नो अदर क्लास कैन एक्सेस माई डेटा, ओके। तो हाइडिंग करने के लिए यू जस्ट नीड टू राइट प्राइवेट, रिमेंबर। कैसे करोगे अचीव एनकैप्सुलेशन, वेरी सिंपल, डेटा को प्राइवेट करो। अब देखो चेंज, इफ आई से माय डेटा इज प्राइवेट, दिस टाइम इफ यू स्क्रॉल डाउन, सी इट इज गिविंग अ एरर फॉर id, व्हाई, सी दिस, the error is coming like the field test.id is not visible for this encapsulation demo class. So what it is saying, अगर आपने id को डायरेक्टली चेंज किया है तो अब ये id विजिबल ही नहीं है, क्यों, बिकॉज id it's now become a private। अगर ये प्राइवेट है तो इट इज एक्सेसिबल विद इन अ क्लास ओनली, टेस्ट क्लास के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, मेथड को एक्सेस कर सकते हो बट यू कांट मॉडिफाई डेटा, रिमेंबर। दिस एग्जांपल, मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है तो आई विल बी कमेंटिंग इट, ओके, लेट मी जस्ट कमेंटिंग दिस पार्ट नाउ, id because I can't directly independently I can't call you know that id, just a minute, let me admit few students, yes, तो independently I can't update id, I can't call id, बट हाँ अगर आप शो मेथड यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली शो मेथड में जो भी ओरिजिनल डेटा होगा you are able to print that data, okay, just a minute, let me check this and let me check, see we are able to see 101 and SARO। तो जो ओरिजिनल डेटा है वही देख सकते हो, उसमें कोई अपडेट नहीं कर सकते बिकॉज योर डेटा इज नाउ प्राइवेट। तो कोई दूसरा क्लास क्या कर सकता है, ओनली दैट क्लास कैन ऑब्जर्व द डेटा बट दे कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। नाउ इफ यू गो टू द टेस्ट डेमो, यहाँ पे भी सेम एरर, सी id is not visible, why this id is not visible, because id which is coming from test class it is now private, तो वो बस उसी क्लास में एक्सेसिबल है, उस क्लास के बाहर नहीं, तो इमीडिएटली यू विल गेट एरर हियर, एवरीबॉडी क्लियर। सो इस क्लास में भी इफ यू रन, नाउ यू कांट अपडेट, सी ऑलरेडी जो डिफाइन है वही देख सकते हो, तो ये है स्टूडेंट का आईडी, दिस इज द नेम ऑफ स्टूडेंट। So what the encapsulation says that it is a main part where we can hide the data from the outsider. So guys, generally this is very important principle, and what the people does you know, they simple explain, क्योंकि fine encapsulation का मतलब होता है डेटा हाइडिंग, yes absolutely correct, बट कैसे, तो ऑब्वियसली हम डेटा को बस प्राइवेट करेंगे डेटा हाइड होगा, ओके दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट ओनली दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, नो, रिमेंबर ओनली हाइड करना एनकैप्सुलेशन नहीं है। अभी आपने क्या किया, बेसिकली you have created a private data, okay, so you have created a private data so that nobody, if they try to access your data, they can't, and they can't modify even, right now। But guys, suppose this is a authorized person, अब क्या होगा, what do you think,
सपोज मैंने कोई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किया, डन, आई हैव सेट सम यूजर आईडी, आई हैव सेट सम पासवर्ड, टुमारो आई वांट टू चेंज माय पासवर्ड। तो अगर ये डेटा हाइड होगा तो एज अ ऑथराइज्ड यूजर आई शुड गेट दिस एक्सेस ना, चेंज पासवर्ड करके, यस और नो? whenever I want to change a password, I should get the access. तो मतलब any authorized person want to access this data, in that case what will happen? Private होगा तो you can't access directly. तो उस केस में क्या करोगे? Suppose tomorrow your account get hacked, right? And in that case, suppose if you want to make some changes, but you don't have authority, maybe कुछ authorized person अलग है, उसके थ्रू अगर authority लेना है तो ये person भी access नहीं कर पाएगा. Why? Because your data is private. So only making a data is a private and saying that okay, we achieve a principle, this is not a solution, everybody. Encapsulation says that okay, fine, you can make a data private so that nobody can access, but you should create one public layer behind the data so that if any request is occurred to access that information, this person can directly communicate with the public, request goes to public will simple goes to, request will pass to the private, and then only that person will access that data. तो ये भी होना चाहिए ना, मतलब प्राइवेट करना इतना सिंपल है कि हाइड करो बस डेटा को, हाइडिंग के साथ देयर शुड बी समथिंग. दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. मतलब wrapping of data function together into a class. Obviously within a class only we are able to access it, but that class should provide any kind of public method. That class should provide some public method so that we can access that data also. So the point I have mentioned here, observe, in encapsulation variable of a class will be hidden from other classes, that is fine, and can be accessed, remember, can be accessed only through the method of their current class. Therefore it is known as data hiding. मतलब प्राइवेट करना ये हाफ पार्ट हुआ, हमने डेटा को हाइड कर दिया है, राइट? बट अब अगर किसी को एक्सेस रिक्वायर्ड है तो कैसे एक्सेस मिलेगा? यूजिंग दिस पब्लिक गेटर सेटर मेथड. दिस इज द टॉपिक नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड what is meant by getter and what is meant by setter method. Let me tell you, if anybody wants to access the data, obviously the person should be authorized one. If the authorized person want to access any data, or if the person wants to modify the data, okay, in that case we should write a public getter and setter method inside a class. मतलब अगर टेस्ट क्लास में आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है तो मेथड कहाँ पे होना चाहिए? इन अ सेम क्लास ओनली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्राइवेट करने से आपका डेटा बस हाइड हो रहा है. रिमेंबर, योर डेटा इज हाइडिंग नाउ, but now we need to provide a access also. We should know how we can provide access of these data to other particular authorized person. तो इसका एक्सेस कैसे दोगे? The solution is we have getter and setter method. Okay, now let me explain कि ये getter setter क्या होता है. जनरली गेटर एंड सेटर इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द वेरिएबल. ये कोई बिजनेस लॉजिक नहीं है. जैसे अभी आपने क्लास में शो मेथड क्रिएट किया, डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया, तो व्हाट इज दीज मेथड गाइस? आई विल से दीज मेथड्स आर कॉल्ड सम काइंड ऑफ बिजनेस लॉजिक. दिस इज व्हाट आई विल से, ऑब्वियसली दिस इज अ बिजनेस लॉजिक, रिमेंबर. तो ये आपका सिंपल क्या है? बिजनेस लॉजिक है, एंड दैट इज अ रीजन वी आर एबल टू यूज दिस बिजनेस लॉजिक. लेट मी राइट बिजनेस लॉजिक. ठीक है, अब देखो, तो एक्चुअल फंक्शनैलिटी हम मेथड में लिखते हैं, बट अभी जो हम टेक्निक सीखेंगे दैट इज कॉल्ड हाउ वी कैन प्रोवाइड अ प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिकली टू द अदर पर्सन. सिंपल. सो गेटर एंड सेटर इट इज यूज्ड बाय द डेवलपर, बट एटलीस्ट एज अ टेस्टर यू शुड नो दिस कि डेटा को हाइड करना है तो प्राइवेट करो, बट एक्सेस प्रोवाइड करना है तो गेटर सेटर को यूज करो. दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड कंबाइनिंग एनकैप्सुलेशन. So encapsulation is used to achieve data hiding, but this is the way to hide the data. Now let me show you. तो अभी हमारे टेस्ट क्लास में कितने वेरिएबल से जो प्राइवेट है, देखो मैंने लिखा है प्राइवेट आईडी, है ना, एंड मैंने एक और वेरिएबल लिखा है प्राइवेट नेम. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द सिंटैक्स. ओके, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय सेटर मेथड. रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय सेटर मेथड. तो गाइस सेटर मेथड मींस इट विल हेल्प यू टू सेट द वैल्यू. सेटर मेथड का काम है वैल्यू को सेट करना. गेटर मेथड का काम है वैल्यू को गेट करना, मतलब एक्सेस करना.
तो ये जो मेथड्स है दीज आर रिलेटेड टू वेरिएबल। तो इसमें डिक्लेरेशन कैसे करोगे? प्लीज रिमेंबर अ सिंटैक्स, सिंपल मेथड सिंटैक्स। यू हैव टू स्टार्ट विथ पब्लिक। ओके, सपोज सेटर है ना, इसका काम है बस वैल्यू को सेट करना, तो जस्ट राइट अ वॉइड एंड सेटर मेथड ऑलवेज स्टार्ट विथ द सेम सेट प्रीफिक्स। आपको लिखना है सेट, ओके, एस स्मॉल, बट जिस आईडी के लिए और जो भी वेरिएबल के लिए क्रिएट करोगे the first letter should be capital. So this is I, consider this is now capital and this is the way. But now setter will set the value. तो ये id कौन से टाइप का है? id is of integer type. तो you have to set some value here. Suppose मैंने लिया set a, कोई भी वेरिएबल यूज करो, it doesn't matter, ठीक है, id भी आपने यूज किया तो भी चलेगा। set a, सेट किसको करना है? डेटा। जो भी यूजर डेटा को पास यहाँ पे करेगा, ये पास हुआ इंफॉर्मेशन हमें सेट करना है हमारे ओरिजिनल आईडी विच इज अवेलेबल इन योर क्लास। तो क्लास के डेटा को एक्सेस करना है, वी कैन यूज दिस कीवर्ड ना, जस्ट राइट दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू व्हाट? ए, दैट्स इट। व्हाट विल हैपन गाइस? अब जब यूजर इस मेथड को कॉल करेगा, whenever user will set some data, data get assigned to which variable? This dot id. This is a keyword which will refer current class object. तो current class में जो है, जैसे id है, name है, show नाम का मेथड है, everything we are able to access through the this. तो ये पॉइंट क्लियर है? सेट कैसे करोगे? One more time for name. How you guys are going to write? Tell me now. Name के लिए कैसे लिखो बताओ? Public. Then what should be the return type? Void only. What is the name? कैसे लिखूं? सेटर मेथड हमेशा कौन से प्रीफिक्स से स्टार्ट होगा? सेट। एंड नेम है ना, तो पूरा वेरिएबल नेम, बट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सिंपल। एंड अब मुझे बताओ कौन से टाइप का नेम है ये? नेम इज ऑफ विच टाइप? स्ट्रिंग। वेरी गुड। कोई भी नाम ले लो, जैसे एग्जांपल मैंने एन लिया, कोई भी वेरिएबल लिया, क्या करना होगा मुझे? I just need to write this dot what? Name. Name is equal to ये जो n है पास किया यूजर ने, इसको सेट करो, that's it. तो right hand side will assign to the left hand side, correct ना? In this way we will pass a data. हो गया आपका setter method ready then, दोनों वेरिएबल के लिए। अब getter method, how to declare a getter method? getter का काम है डेटा को रिटर्न करो। So we have to start with this public. रिटर्न करेगा ये मेथड, तो आई विल बी डायरेक्टली राइटिंग अ रिटर्न टाइप। पहला मुझे आईडी रिटर्न करना है, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ आईडी? आईडी कौन से टाइप का है? इंटीजर। तो आप डायरेक्टली लिखो इंटीजर। एंड गेट मेथड भी स्टार्ट होगा, गेटर मेथड भी स्टार्ट होगा विद अ गेट प्रीफिक्स एंड फर्स्ट लेटर कैपिटल आईडी। इसमें कोई भी वैल्यू आप पास नहीं करोगे, बिकॉज दिस मेथड इज ओनली रिटर्निंग दैट वैल्यू। व्हाट इट विल रिटर्न? रिटर्न डॉट आईडी, सिंपल, रिटर्न आईडी। एवरीबडी क्लियर? So tell me for string कैसे लिखोगे? Public. What should be the return type for name? String. Very good. Then name. Then Return name. very good. हो गया रिटर्न नेम। तो इतना सिंपल है। दिस इज व्हाट ओनली वी राइट हियर अ वेरिएबल गाइस। हम इसमें कोई लॉजिक नहीं लिखेंगे, जैसे प्रिंट आउट स्टेटमेंट एंड ऑल लिखते हैं ना मेथड में, वैसे नहीं लिखना है। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द वेरिएबल। ओके, वी डोंट मेंशन एनी काइंड ऑफ लॉजिक हियर। इसलिए मैंने लिखा कि बिजनेस लॉजिक अलग है, गेटर सेटर अलग है। तो चलो मैं आपको पहले बताऊंगी मैन्युअली कैसे क्रिएट करना है। लेट मी राइट वन मोर टाइम। पब्लिक, जैसे कि void set id, okay, and this will accept some id. So let me write integer id. I will be taking same variable. Okay, you can take any variable. Let's say let me take I. So this time I will be referring this dot id c is equal to I. मतलब जो भी I के पास है पहले इसको सेट करो। देखो now let me write a getter technique. पहले एक एक वेरिएबल का देखो, मैंने एक वेरिएबल में बस चेंज किया है। आई हैव डिफाइंड माय आईडी एज अ प्राइवेट। ओके, तो अब देखो सपोज पब्लिक, ओके, रिटर्न टाइप है इंटीजर बिकॉज दिस इज माय गेट मेथड, गेट आईडी। ओके, एंड व्हाट द गेट आईडी विल डू? गेट आईडी विल रिटर्न दिस आईडी, दैट्स ओके। दिस टाइम इफ यू ट्राई टू एक्सेस द आईडी हियर, व्हाट विल हैपन? तो पहले हमारे पास एक्सेस नहीं था, राइट? तो आप इस वजह से एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। बट नाउ व्हाट वी कैन डू,
we will just write a reference variable t1 dot, and here I can say set id. Can you see set id? Suppose मुझे लिखना है 333, this is the id, okay, and then I have to just print that. तो print करना है मतलब get करना है ना, access करना है. तो कैसे करोगे access? Again you have to write t1 dot get id. Now you can see if I execute this time, previously the access was not available, but now at least I'm able to update something and I can show you also. Yes or no? Same आप यहाँ पे भी कर सकते हो ना. test demo class में just write t1 dot again set id में suppose मैंने कुछ लिखा है 90 as a id. Okay, just let me write and then मुझे finally इसको print करना है. तो what I will be writing? t1 dot get id. अब देखो इस क्लास को रन करो, यू विल बी एबल टू सी द अपडेटेड डेटा. नाउ आई एम गेटिंग 90, है ना. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ सेटर एंड गेटर नाउ वी आर एबल टू मॉडिफाई द डेटा एंड नाउ वी हैव अचीव कंप्लीटली एनकैप्सुलेशन. हमने हाइड भी किया एंड हमने एक्सेस भी दिया, राइट. दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. सो नाउ लेट मी शो यू वन मोर ब्यूटीफुल टेक्निक. तो मैंने बस एक वेरिएबल के लिए आपको शो किया कि आप गेटर सेटर मैन्युअली कैसे लिखोगे, बट इक्लिप्स है, वी आर यूजिंग दिस इक्लिप्स एडिटर. आपने जितना भी प्राइवेट वेरिएबल देना है यू कैन गिव दैट वेरिएबल एंड यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन इक्लिप्स. ओके, विदाउट राइटिंग दिस कोड यू विल गेट इट रेडीमेड. कैसे? राइट क्लिक करो इक्लिप्स पे, जस्ट गो टू सोर्स में देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑप्शन होगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, दिख रहा है. जनरेट गेटर सेटर्स मेथड फॉर टाइप्स फील्ड, मतलब ओनली फॉर वेरिएबल दिस मेथड हम जनरली फॉलो करेंगे, तो यूज करो. सी अब आईडी के लिए तो मैंने लिखा है ना पहले से, तो मुझे बस एक्सेस आ रहा है नेम का. आई कैन सिलेक्ट नाउ नेम एंड जस्ट क्लिक ऑन जनरेट. सी द रेडीमेड कोड यू आर एबल टू सी. अब देखो यहाँ पे मुझे आ रहा है, लेट मी थोड़ा सा इसको यहाँ से कट करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ. ठीक है, देखो अभी दिस इज अ रेडीमेड कोड. कैन यू सी? नेम के लिए गेटर मेथड, सेटर मेथड, सी दिस एवरीबडी. ये मैंने जनरेट किया, राइट. मैंने लिखा नहीं है मैन्युअली, आई हैव जस्ट जनरेटेड इट. तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये समझा आपको कैसे किया है हमने? So main encapsulation concept is what? Encapsulation, it is a mechanism where we can wrap a data and function together. But वो data function मतलब कौन सा function? Data is nothing but we can simple make the data as a private, and functions is nothing but to access that particular function we will use getter setter method. That is called functions. And whenever we wrap it together in a single class, that is called encapsulation. Right now? तो हाउ टू अचीव इन जावा? ओनली इन टू वेज. डेटा को प्राइवेट करो, प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए गेटर सेटर मेथड को यूज करो. दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. एंड व्हाट इज द पर्पस? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस? इट इज यूजफुल फॉर डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग और डेटा हाइडिंग. सिंपल. देन व्हाट इज अ रियल टाइम एग्जाम्पल? रियल टाइम एग्जाम्पल ऐसा कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें डेटा फंक्शंस टुगेदर है एंड वी आर एबल टू यूज द फीचर्स. ओके, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. एग्जाम्पल, योर मोबाइल पे आप लोग पासवर्ड सेट करते हो, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल थिंग्स आर हाइडिंग. सिंपल. तो व्हाट यू आर हाइडिंग? यू आर हाइडिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यू आर हाइडिंग योर डेटा. दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. तो मेथड भी वहीं पे है, उसको एक्सेस भी वहीं से करोगे, मोबाइल से ही करोगे, एंड उसको हाइड भी मोबाइल में ही करोगे. This is called what? Again encapsulation. Yes or no? Let me show you real time scenario. So guys, tell me, whenever you see any login functionality, ठीक है, कोई भी login functionality consider करो, Facebook है, Gmail है, right, Insta है, so many things are there. तो login में usually हमारा task क्या होता है? You just need to write some username, you just need to write some password, and you will just click on that OK or login button. So whenever you are passing any data, ये डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? डेटा विल स्टोर इनसाइड अ डेटाबेस, है ना. समवेयर इन द डेटाबेस इट विल स्टोर. तो हैव यू लाइक whenever you pass a data, whenever you click on button, okay, is it this data you can access? Tell me.
क्या ये डेटाबेस का डेटा एक्सेसिबल होता है? नो, वी विल जस्ट सी दैट ओके व्हाट एवर द नेक्स्ट पेज विल बी देयर और डैशबोर्ड विल बी देयर, हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दैट, वी विल जस्ट ऑब्जर्व दैट। करेक्ट। लॉगिन करने के बाद आपको आपका मेन प्रोफाइल मिलेगा, बट क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इंटरनली डेटा वैलिडेट कैसे हुआ, प्रोसेस कैसे हुआ? नो, बिकॉज योर डेटा इज नाउ हाइडेड। इनफैक्ट व्हेन यू राइट अ पासवर्ड, तो पासवर्ड भी आपको मिलता है इन एस्ट्रिक फॉर्म, तो दिस इज अगेन डेटा हाइडिंग। Whatever data you have written, it is now converted in separate encryption format, right? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? Data is hide so that nobody can access your data. But yes, as a tester or as a user, if you are authorized one, you are able to access this data from the database also. Clear? But अभी ये सिनेरियो मुझे प्रिपेयर करना है, तो जनरली डेवलपर एनकैप्सुलेशन कहाँ पे फॉलो करते हैं, पहले ये अंडरस्टैंड करो। जैसे कि देखो, I'm creating one simple class, and this is a one more step. We are learning something advanced, so please focus properly. Suppose I'm creating one login page class. Okay, I don't want main function, only page, and in this I will be writing some data. तो login page है, मुझे बस दो data information available required है. Suppose let's say string username, ठीक है, and yes, okay, fine, string username, and I just want string password. ठीक है, डन। आई जस्ट वांट स्ट्रिंग पासवर्ड, बट सपोज मैंने डिफाइन किया है बोथ डेटा आर नाउ प्राइवेट, ओके, बिकॉज नोबडी कैन एक्सेस नो वंस डेटा। यूजर्स आर डिफरेंट, तो उनका डेटा कोई भी अदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, एंड बिकॉज दिस डेटा इज अ प्राइवेट, तो आई विल बी जस्ट डिक्लेयरिंग इट्स एक्सेस ऑल्सो। मैंने हाइड किया डेटा को, बट मुझे अब इसको एक्सेस भी देना है। तो एक्सेस देने के लिए आई कैन डायरेक्टली राइट क्लिक ऑन कंसोल, आई मीन टू से दैट माय एडिटर, and I will go to the source and I will directly go to that option, generate getter setter. ठीक है, देखो यूजर नेम पासवर्ड दोनों आ रहा है, yes, let me select and let me just directly click on generate. Now you can see यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड के लिए आपका getter and setter मेथड जनरेट हुआ, डन। Now guys, I will be writing one business logic, just observe. This is the way now I will be writing my business logic. See, क्या करना है मुझे बिजनेस लॉजिक में? मुझे बस लिखना है एक मेथड, पब्लिक वॉइड लेट्स से डू लॉगिन। एवरीबडी ऑब्जर्व, डू लॉगिन, बिकॉज एट द एंड मुझे लॉगिन करना है, बट लॉगिन करते समय पे आई हैव टू पास दिस यूजर नेम एंड आई हैव टू पास द पासवर्ड, जो भी यूजर पास करेगा, है ना। अभी के लिए हम यहाँ पे कोड नहीं लिखेंगे, आई विल बी राइटिंग ओनली प्रिंट स्टेटमेंट। So I will be writing, okay, fine, username is, and let me write this username, just observe. ठीक है, and I will be writing one more statement. मैंने लिखा है password, password is, and then I will be printing that password. ठीक है, तो गाइस आई विल शो यू कि कैसे हम रियल सिनेरियोज में डेटा जब एंटर करते हैं, तो एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस राइट देयर प्रोफाइल। तो कैसे? तो उसके लिए डेवलपर इस वजह से कोड प्रिपेयर करेंगे। इंटरनली दे विल क्रिएट अ पेज कोड ओनली, फाइन, मतलब पेज में कितना टास्क करना है यूजर को, तो इतना टास्क यूजर को बस एंटर करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड, है ना। एंड वेन एवर यूजर क्लिक ऑन द बटन, तो बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे जनरली ये मेथड कॉल होगा, सिंपल। जब बटन पे क्लिक होगा, यू आर गोइंग टू पास सम डेटा एंड ऑटोमेटिकली डेटा विल पास इनटू द डेटाबेस, सिंपल। तो पहले मैंने क्या किया, जस्ट ऑब्जर्व, मैंने बस दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, यूजर नेम पासवर्ड, मैंने इसको प्राइवेट किया, एंड प्राइवेट मेथड को एक्सेस करने के लिए आई हैव यूज दिस टू गेटर सेटर मेथड, दैट्स इट। फाइनली मेरे प्रोग्राम में एक लॉजिक भी है जिसके थ्रू आप लोग डेटा को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, दैट मीन्स आउटपुट, है ना। वी आर एबल टू सी सम आउटपुट। नाउ what I'm going to do, I will be creating the test class. देखो मैं एक सेपरेट क्लास प्रिपेयर करूंगी, दिस इज login page test class, रिमेंबर इसमें मुझे यूज करना है मेन मेथड। देखो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू यूज नाउ मेन मेथड। व्हाट आई हैव टू डू, फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई मेथड से, अगर कोई क्लास से डेटा को रीड करना है, एक्सेस करना है, तो वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, राइट ना। तो इनिशियली आई विल बी क्रिएटिंग लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट, login page lp is equal to new, again I will be writing here login page, and what I'm going to do this time, see,
लेट मी अप्लाई सेमीकोलन। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, whenever you create a object, now you can access all the method of that particular class ना। तो अगर मुझे कोई, लेट्स से कि दिस इज द अमेजोन पेज, ओके, तो अमेजोन के टेस्ट केस में अगर हमें लॉग इन करना है तो क्या करोगे, I will just call a object and I will just call a method. Can I call here directly? See, I will just say first of all LP, okay, LP dot some set user name, ठीक है। मुझे पहले यूजर नेम सेट करना है, जैसे कि फर्स्ट नेम इज स्मिता, डन। एंड LP डॉट आई विल से सेट पासवर्ड, इसका कोई पासवर्ड होगा तो लेट्स से पासवर्ड भी स्मिता ने सेम सेव किया है जैसे कि स्मिता। देन ऑन क्लिक, जब बटन पे क्लिक करोगे तो मेथड को कॉल करो, जैसे कि LP डॉट आई विल से हियर व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड, डू लॉगिन, है ना। एंड गाइस यहाँ पे हमें डेटा पास करना है, कौन सा डेटा, जो आपने सेट किया। तो सेटर का डेटा कहाँ से एक्सेस होगा, गेटर से। तो क्या करना पड़ेगा, LP डॉट गेट यूजर नेम, दैट्स इट। एंड कैन आई राइट हियर LP डॉट, वन मोर टाइम, LP डॉट गेट पासवर्ड, यस, हो गया। सी व्हाट विल हैपन इफ यू रन दिस। नाउ लेट मी डू वन थिंग, ये लॉगिन पेज टेस्ट है ना, इसके बदले में कोई भी एप्लीकेशन का नाम देने दो तो इट विल लुक लाइक some real time scenario. Just a minute, let me rename it. I will say it's a Amazon test. Suppose Amazon पे login इस वजह से करोगे, है ना। Everybody they can come and they can just perform the action. See, अब ये हुआ Amazon. Yes, and what is happening now? Let me check it. So the method string is undefined for the type login page. Why? Let me check it one more time. So we have defined the method and I'm getting some problem with Amazon now. Let me one more time check it. So the method setter username string is undefined for the type login page. No, it should be accessible. Let me write one more time. See, public. Let me write static void main. It should be accessible. And inside a main, let me write string args. Okay. Up. Let's call. So example, I will be calling again login page. LP is equal to new. Again, I will be calling login page. Okay. Yes. तो ऑब्जेक्ट है बिकॉज एन LP से आप कोई भी मेथड के वेरिएबल को कॉल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया। सी, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। सी, आई विल बी कॉलिंग वन मोर टाइम, ओके, स्मिता, लेट मी कॉल। देन LP डॉट अगेन सेट पासवर्ड। सी, सेट पासवर्ड में भी मुझे सेट करना है स्मिता। एंड देन आई विल बी कॉलिंग LP डॉट टू लॉगिन। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बस गेट मेथड कॉल करो, क्यों, बिकॉज हमें डेटा को एक्सेस करना है। LP dot one more time get password. This time let's see. So we are doing now, we are trying to log in Amazon. Consider, see, Smita is printed, yes or no. Now if any other user occur or any other user wants to again do some login, what the user will do, user will simply visit to the site, user will set its username. What do you think, correct now? LP dot set username. As an example, this time Amit is coming, fine, Amit will simple try LP dot set password. Yes, Amit will enter his password. Example one more time, Amit, and then he can just call that, he can just click on that button ना, तो बटन पे ये मेथड अगर कॉल हमने दिया, LP डॉट जैसे बटन पे क्लिक होगा तो डू लॉगिन को कॉल करो, एंड इंटरनली व्हाट विल हैपन, अगेन LP डॉट गेट यूजर नेम and get password. Yes or no? Easy. So what is hiding here? Everybody, is this clear? LP dot get password. See, this time if you run one more time, you are able to see the two different results. First for Smita, second for Amit. तो exactly क्या होता है समझ में आ रहा है आपको? क्या जनरली हम इस वे से परफॉर्म करते हैं एक्शंस को। नाउ स्मिता का इंफॉर्मेशन अमित एक्सेस नहीं कर सकता, अमित का इंफॉर्मेशन स्मिता एक्सेस नहीं कर सकती, राइट ना। So everybody has its username and password. We just enter, and once you click on the button, you will be able to see the result. So encapsulation means what? It is a concept or it is a entire principle where you can hide the data from the outsider. But this is the way to hide the data. So first point, private कीवर्ड से डेटा को हाइड करो। एक्सेस करने के लिए getter setter मेथड को यूज करो,
So it becomes wrapping of data function together into single unit, that is called encapsulation. तो मैंने यहाँ पे डेटा एंड इसके मेथड को एक ही साथ एक ही क्लास में रैप किया. तो हियर इन द लॉगिन पेज आई हैव अचीव्ड एनकैप्सुलेशन and its use I have just explained you in this Amazon page. Everybody clear? Okay, any queries, any doubt you can ask. जैसे कि मैंने बताया था कि we are learning principles, तो principles and Java topics दोनों में डिफरेंस है ना. ठीक है, अब जितने भी टॉपिक्स आपने लर्न किए उसी का ये कॉम्बिनेशन. But this principle, because of this principle only, you know, Java is a very, very popular programming language. तो जावा के पास एनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल है, जिसका काम है डेटा को हाइड करना. तो हाइड करने के लिए वेरिएबल्स को, डेटा मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल को प्राइवेट करो एंड प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मेथड को रैप करो विद इन अ सिंगल क्लास, एंड दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. प्लीज रिप्लाई. Yes, students, any doubt, any difficulty? Okay, Akshay, Naneshwari, Pooja, tell me, any difficulty? Is this clear? Ujjwal, Shubham, Yes, Sharma, ma'am. Rohit, Rajyasree, I can see, right? Done. तो एनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल में बस ये 2 पॉइंट्स को याद रखो, ठीक है, कि डेटा को हाइड कैसे करोगे एंड डेटा के लिए मेथड्स कैसे प्रोवाइड करोगे. एंड मेथड्स इज नथिंग बट गेटर सेटर मेथड. अगर आपको मैन्युअली लिखना है लिखो, देयर इज नो इशू. मैन्युअली नहीं लिखना है तो आप सिंपल राइट क्लिक करके यू कैन जस्ट ऐड दोस मेथड ऑटोमेटिकली. तो यू हैव 2 डिफरेंट ऑप्शंस नाउ. ठीक है, सो अचीव जस्ट एनकैप्सुलेशन. नाउ लेट मी, यस टेल मी. मैम, यूजर नेम की जगह स्पेशल कैरेक्टर और अल्फा न्यूमेरिक यूज किया तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा? नो, नॉट फॉर दैट. जनरली अगर अल्फा न्यूमेरिक ऐड करते हो और अगर आपने स्ट्रिंग में डिफाइन किया है ना, तो वी कैन ऐड दैट. एग्जांपल स्मिता 01, स्मिता 01. सो वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग. फॉर स्पेशल कैरेक्टर? सॉरी, स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर. सो व्हाट यू वांट टू ऐड, लाइक ईमेल आईडी? पासवर्ड. हाँ ठीक है, तो स्मिता 01 @what suppose gmail.com, Amit 02 @gmail.com. See, it is in string now, so you can add any information. There is no issue. See, run karo, you'll be able to see the result. Clear? Yes, ma'am. तो आप नंबर, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, आपका लाइक अ जीमेल आईडी, यू नो, हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, एनीथिंग यू कैन ऐड. बिकॉज एट द एंड whatever you are passing, it is accepting in which format? ये एक्सेप्ट कौन से फॉर्मेट में हो रहा है? देखो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो रहा है ना एक्सेप्ट. जो सेट हो रहा है वो स्ट्रिंग में हो रहा है. तो स्ट्रिंग में मतलब वी हैव ऑलरेडी सीन द रूल ना, एनीथिंग यू राइट इन डबल कोट दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग. यस और नो? अच्छा, कल हमने स्ट्रिंग क्लास पढ़ा, तो मुझे बताओ, मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछूंगी. ओके एवरीबडी, जस्ट आंसर. आई गेस ये टॉपिक मैंने कवर किया था रैपर में. देखो, अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू लेट्स से 100. रिमेंबर, स्ट्रिंग s2 is equal to suppose ABC. Then string s3 is equal to suppose space. String s4 is equal to suppose मैंने लिखा है ऐसे special characters. String s5 is equal to suppose A, only single character. तो इसमें से करेक्ट स्ट्रिंग कौन सा है? My question is, which string is correct one? All are correct, ma'am. All are correct ना. तो ऑलरेडी रूल वी हैव सीन कि डबल कोट में जो भी लिखोगे एंड अगर वो स्ट्रिंग है तो इसको आप स्ट्रिंग ही डिक्लेयर करोगे. सिंपल. whatever we write in double quote that is called string only. तो इसमें आप नंबर लिखो या स्पेशल कैरेक्टर लिखो या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लिखो, इट डजंट मैटर. सिंपल ये ब्लैंक स्पेस भी एक्सेप्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. आर यू क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपने डेटा को किसी भी पैटर्न में पास किया तो भी एट द एंड वी आर पासिंग दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. सो दैट इज द रीजन देयर इज नो इशू. सो इट्स अप टू यू कि अगर ऑब्जेक्ट में करोगे तो सेम होगा. वॉट एवर यू आर पासिंग इट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. मैंने सिंपल लॉगिन के लिए स्ट्रिंग डेटा को प्रिपेयर किया था, यूजर नेम स्ट्रिंग, पासवर्ड स्ट्रिंग, दैट इज अ रीजन.
whatever you are passing, it is in the string. Yes, Shubham, clear? Yes, ma'am. Okay, done. So this is a very important principle. तो जावा में जब देखो इंटरव्यू होता है ना, जैसे कि यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम नॉट टेक्निकल बैकग्राउंड, तो भी प्रिंसिपल्स के ऊपर तो क्वेश्चन डेफिनेटली होगा. एंड लेट मी टेल यू, एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो. व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? फर्स्ट, एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है. थर्ड पॉइंट इज व्हाट, हाउ वी कैन अचीव इन जावा. Sometimes people might ask you, okay, can you please explain while writing a code? तो छोटा सा एग्जांपल कोई प्रिपेयर करके एक्सप्लेन करो. कोई एक वेरिएबल जिसको प्राइवेट डिक्लेयर करो, एक्सेस देने के लिए गेटर सेटर अप्लाई करो, तो यू शुड नो द सिंटैक्स प्रॉपर्ली. ओके, समटाइम्स दे माइट आस्क यू राइट अ कोड, एंड उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए एनी रियल टाइम एग्जांपल. जैसे कि इफ यू सर्च ऑन गूगल यू विल गेट सो मेनी एग्जांपल. जैसे कि अभी के केस में आप लोग ये जो भी करते हो, राइट, यू आर वैलिडेटिंग योर कार्ड इन एटीएम मशीन, you are validating a pin number, right? So internally basically your data is hiding. Simple. Card validation, you know, your pin number validation, it is hiding from the user. So that is again called data, or I can say encapsulation. Clear? Second point, example जैसे medicine. Medicine में क्या होता है, whenever you take any kind of medicine, at that time medicine itself contains some kind of ingredients plus its functionality. So when you take, ऑटोमेटिकली यू विल क्योर विद द प्रॉब्लम ना. तो एक ही चीज जिसमें डेटा भी है, फंक्शन भी है, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन.